ये आ गई। Now see here, for discussing the properties of the gaseous state of matter, I have taken this activity. Will you able to see my screen? Will you able to see the uh, all of you can able to see my screen? सबको यस screen मैम। दिखाई दे रही है? यस मैम। Yes. Okay. Now see here, we are going to discuss about the properties of the gas. हमें गैस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। उसके लिए हमने क्या किया है यहाँ पे, वी हैव टेकन, समझो ये एक 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 ग्लास जार है। उस ग्लास जार में हमने हमारी धूप कांडी होती है, देखो, वो उस धूप कांडी को बर्न करके उसके ऊपर ये गैस, ये गैस का जार उसके ऊपर इन्वर्ट करके रखा। तो क्या हो जाएगा, धूप की कांडी जलने से जो स्मोक आ जाएगा, वो स्मोक पूरा इस ए जार में फिलअप होगा। यानी कि ए जार इट इज गेट फिलअप विद द ऑफ द स्मोक। आया समझ में? एक बार इसमें पूरा स्मोक फिलअप हो गया, तो उसके बाद उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट रख दी जाती है, राइट। मैंने क्या किया, इस तरह से ए जार में गैस को, यानी कि स्मोक से फिलअप कर दिया। उसके ऊपर ग्लास की प्लेट रख दी है, तो स्मोक बाहर नहीं जा पाएगा। अगर मैंने उस एक जार के ऊपर दूसरा जार, उसी साइज का दूसरा बी जार, अगर मैंने उसके ऊपर उल्टा करके रख दिया और बीच में की ग्लास प्लेट निकाल दी, तो थोड़ी देर के बाद मुझे क्या ऑब्जर्व होगा, जो स्मोक एक जार में था, वही स्मोक बी जार में भी आ रहा है, राइट। मीन्स इन दिस केस हियर what will happen, the smoke from the A jar, it is occupying the space within this B jar also. Means it is get spread within the B jar. Actually B jar is the empty jar. B jar में कुछ smoke नहीं था, वो खाली जार मैंने दूसरे जार के ऊपर रख दिया, तो ए जार में का स्मोक बी जार पे आ गया। फॉलो दिस वन। इससे हमें कौन सी प्रॉपर्टी गैस की समझ में आती है, दैट गैसेस आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ द शेप, they can be sprayed by their own, they can be sprayed by their own, and as well as the gaseous particles are moving freely in all directions, right? The gaseous particles are moving freely in all directions. This property we can able to see from this activity. Have you followed this one? Means what we learn about this gaseous state of the matter. See here, I'm going to give you the notes for these one. In the yesterday's class we have discussed regarding the properties of the solid state and that of the properties of the liquid state of the matter. Now we have to discuss regarding the gaseous state of the matter. Now how it is the gaseous state of the matter, what are the properties of the gaseous state of the matter, we are going to observe. Now see, in this case here, what are the properties? I'm going to tell you regarding the properties of the gaseous state of the matter. Will you able to see my screen? Yes, children? Yes, tell me. Ma'am, your voice is not proper. Property. Your voice is not proper. Huh? My Yes. voice is not proper. You are doing some annotations. Okay, now is it clear? Yes, is it clear? Yes, ma'am. Now see here, हेलो we मैम। have, हाँ, yes, will you आप able जो to, हाँ, बोलो। आप, आप जो पढ़ा रहे हो उसके वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भेजो ना। बेटा आप, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको क्लास के ग्रुप पे आ जाएगी। मैं अब पढ़ा रही हूँ तो क्लास ऑनलाइन है, शुरू है, इसकी रिकॉर्डिंग इस
हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग होने के बाद में आपको ये क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। राइट नाउ यू आर इन द लाइव क्लास। समझ में आ रहा है? ओके मैम। यस बेटा। ओके नाउ वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। हमने अभी अभी एक एक्टिविटी एक्सप्लेन की थी। उस एक्टिविटी से हम एक करके आपको बताती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी गैसियस, see here the first property, first one property of the gaseous state of the matter, it is nothing but gaseous state of matter is not having is not having definite shape and volume. It is not having definite shape as well as the definite volume. Second property of the gaseous state of the matter, particles are randomly moving. Are randomly moving. Particles are moving randomly. They are moving randomly. Another one, that is the third one property. It is that particles have मैम सेकंड प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? पार्टिकल्स आर रैंडमली मूविंग, यानी कि गैस के पार्टिकल कभी भी एक जगह पे नहीं होते हैं, वो हर एक दिशा में मूव करते हैं। राइट वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव नहीं करते, वो अलग अलग दिशाओं में हमेशा मूव करते रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द हवा है, हवा के पार्टिकल क्या एक दिशा में मूव कर रहे हैं क्या? चारों तरफ हवा है ना हमारे इर्द गिर्द। ऐसा नहीं होता है कि हमारे सामने सिर्फ साउथ साइड में बहुत सारी हवा है, वेस्ट साइड में हवा नहीं है ना? ऐसा होता है क्या? यस, समझ में आया? पार्टिकल्स ऑफ gaseous state of matter of gaseous state of matter have very weak forces of attraction, have very weak forces of attraction, right? Have very weak forces of attraction. Third one, gaseous state particles, gaseous state particles are well separated, are well separated from each other, from each other. काय झालं? काय? हेलो, हो हाँ बोलो बेटा, समझ में आया क्या? काय झालं? अभी ये सुचिरा, any difficulty? Now see, we have shared the screen and I have told you that, see, देखो मैंने क्या 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 बताया था आप लोगों को कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कैसे कैसे बताई थी मैंने हियर। अब देखो एक और एग्जांपल से भी हम ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं। कौन से? सी, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉपर्टी बाय टेकिंग वन मोर एग्जांपल। देखो हम एक और एग्जांपल लेंगे जिससे कि आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये देखो, ये क्या है? ये एक गिलास जार है, उसमें हमने क्या रखा है? आयोडीन। आपको पता है आयोडीन इट सब्लाइम्स, सब्लाइम्स यानी कि क्या? आयोडीन, it is get converted
in the form of the vapor phase. Iodine, iodine, iodine is converted into the vapor phase. Iodine इसमें convert हो रहा है देखो vapor phase में. It forms the violet color vapors. The vapors of the iodine occupies all the glass jar within each one. Right? Iodine occupies all the glass jar within all the space within the glass jar like this one. Then after that, this iodine over this iodine jar, if I place one empty jar over it one, then you can see in this case here, the iodine vapors are freely spread inside the gas jar. You got this one? Means in this case here, the gases can flow by their own from one place to the other. It is indicating that the gaseous particles are having the gaseous हेलो मैम, आवाज येत नाहीये. मैम आवाज नहीं आ रही. मैम आवाज नहीं आ रही.
First property which we have discussed, it is nothing but particles of हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यस मैम। आ रही है ना? मैंने पहले भी इसके प्रॉपर्टीज दिए थे। पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। हाँ बोलो कौस्तुभ। मैम गैसियस स्टेट पार्टिकल्स स्पेस हाँ ऑक्यूपाई करते हैं क्या? हाँ बेटा, सारा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो अपने आप। पार्टिकल्स ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, देखो हमारे इर्द गिर्द हवा है। हवा सारी जगह का स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना? यस मैम। करती है ना? हाँ, यस। हमारे पूरे रूम में कितनी हवा है आपको पता? वॉल्यूम आपको डेफिनेट पता नहीं है, लेकिन यस। उसने सारा स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये आप रियलाइज कर सकते हो। राइट? यस। पार्टिकल्स ऑफ, वी कैन से हियर, first one property of the gaseous state of matter, it is that gaseous state of matter, gaseous state of matter neither have definite space, definite shape, nor definite volume, nor definite volume। उसका मैम वॉल्यूम डेफिनाइट नहीं होता और उसका शेप भी डेफिनेट नहीं होता। हाँ बोलो बेटा। यस बोलो। डेफिनेट होगा या नहीं होगा? क्या हुआ? डेफिनेट शेप होगा या नहीं होगा? डेफिनेट शेप कैसे हो सकता है बेटा? हम जिस वेसल में डाले, अगर हमने बलून में हवा भर दी तो बलून का जो शेप आएगा वही हवा का शेप होगा। बलून में से निकाल के हमने हवा ग्लास जार में डाल दी तो ग्लास जार का जो शेप होगा वही गैसियस स्टेट ऑफ मैटर का शेप होगा। राइट नो? अगर हमारा बलून हार्ट शेप का है तो गैसियस, उसमें जो हवा भरी हुई है उसका शेप क्या हुआ? हार्ट शेप का हुआ। अगर हमारा हमारा बलून सर्कुलर शेप का है तो गैसीय, उसमें जो हवा हमने भरी है उसका शेप भी कैसे होगा? सर्कुलर ही होगा। राइट? जैसे जैसे हम वेसल चेंज करेंगे या बलून का शेप चेंज करेंगे, वैसे वैसे गैस का शेप भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आई गॉट दिस वन, समझ में आया? यस यस। मैम। हाँ, means gaseous यस state मैम। of matter neither have definite shape nor definite volume। Second property है particles of matter, particles of matter are randomly separated, are randomly moving, are randomly moving। randomly यानी कि किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। randomly moving means they are moving in all direction, that is they move in all direction by their own। मुट्ठी में कोई हवा पकड़ सकता है क्या? यस। हमारी मुट्ठी में हम हवा को बंद कर सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो वो particles of matter are randomly moving, that is they move in all direction by their own। Third one property of the gaseous state particle is that these particles are well specified from each other, are well specified from each other, that is they are separated by large distance from each other। Right? That is they are separated by large distance from each other। I got this one, समझ में आई है? These particles are well separated, well specified from each other, that is they are separated by large distance from each other। Right? Here
fourth one, the property of spreading gas particles by their own is known as diffusion. It is known as the diffusion. उसे क्या बोलते हैं? It is known as diffusion. I followed this one. समझ में आया? It is known as the diffusion. Yes, children. समझ में आ रहा है क्या? Everybody got what I am going to teach you? सबको पता चल रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ, अभी अच्छे से सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Hello, Now, ma'am. how to say? हाँ, बोलो बेटा. वो बोलो. 4 नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो फिर से एक बार बताओ. 2 नंबर का प्रॉपर्टी फिर से बताऊं? ओके, देखती हूँ 2 नंबर का 4 प्रॉपर्टी. नंबर का. Particles of matter are randomly moving. That is, they move in all direction by their own. गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स है वो इधर उधर ऐसे मैम, वो वैसे डिफ्यूजन वाला. घूमते रहते हैं. हाँ, डिफ्यूजन वाला. डिफ्यूजन वाला. The property of spreading gas particles by their own, it is known as the diffusion. ये वाला देखो, मैंने अभी अभी आपको एक एक्टिविटी दिखाई थी ना. मैंने एक एक्टिविटी जिसमें कि क्या होता है, ये जो गैसियस पार्टिकल्स है, ये देखो मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको वो प्रॉपर्टी. हमने एक जार में आयोडीन रख दिया है. क्या रख दिया है? आयोडीन. आयोडीन क्या हो जाता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर फेज. राइट, आयोडीन इट इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर फेज. जब आयोडीन वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है तो जार में का सब कुछ वो आयोडीन क्या कर देता है? ऑक्यूपाई कर देता है. देखो यहाँ पे देखो, इस साइड में मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हमने क्या देखा था. ये देखिए, ये ग्लास जार की प्रॉपर्टी हमने देखी थी. मैंने आपको ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन भी की थी. आपकी बुक में ये प्रॉपर्टी दी हुई है. आपके पास बुक्स है? आर यू हैविंग द बुक्स? यस मैम. ये देखो, ये गैसीय स्टेट की प्रॉपर्टी है. ये देखो, 2 प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन किए थे. ये देखो, ये एक जार है ए, उसमें मैंने धूप धूप हम जलाते हैं ना पूजा करते वक्त, उस धूप को जलाया और उस धूप के ऊपर मैंने ये ग्लास जार ऐसे इन्वर्ट करके रख दिया. तो ये धूप का जो होता है, यहाँ पे क्या ये धूप का जो स्मोक होता है, इस स्मोक में ए जार का जो स्पेस था वो पूरा के पूरा ऑक्यूपाई कर लिया. राइट, ये देखो ए जार में पूरा स्मोक भर दिया गया. और उसके बाद ये देखो यहाँ पे क्या किया है. सी हियर, ये ए जार के ऊपर ये बी जार जो खाली जार है वो जार मैंने उसके ऊपर रख दिया. और ए जार के ऊपर जो ग्लास प्लेट रखी थी वो ग्लास प्लेट मैंने निकाल ली. राइट, तो ए और बी जार दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख दिए. तो ए जार में का स्मोक कहाँ पे चला गया? बी जार में चला गया अपने आप. मैंने उसको सक किया क्या? नहीं, वो ए जार में से स्मोक अपने आप बी जार में चला गया. राइट, ये एक एग्जाम्पल हो गया. यानी कि स्मोक जो है वो अपने आप एक एक जार से दूसरे जार में चला गया. पानी ऐसे चला जाता है क्या एक जार में से दूसरे जार में अपने आप? बोलो. यस चिल्ड्रन, पानी चला जाता है क्या अपने आप? ये देखो, ये एक जार है, इसमें आयोडीन रखा हुआ है. आयोडीन वेपराइज हो गया. आयोडीन ने वेपर्स तैयार किए पर्पल कलर के.
और पर्पल कलर के ये वेपर्स बाहर ना जाए इसलिए मैंने उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट रख दी। अब देखो उसके ऊपर मैंने एक खाली जार रख दिया और ग्लास प्लेट हटा दी। तो देखो इस जार में से उसके ऊपर जो मैंने जार रखा था उसके ऊपर क्या किया गया, उसमें भी वो वेपर्स अपने आप चले गए। एक सादा सा एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। अगर समझो सुबह सुबह किचन में आपकी मम्मी कुछ खाना पका रही है और आप किचन में नहीं हो, आप दूसरी तरफ हो, तो आपको स्मेल आती है ना किचन में क्या पक रहा है इसकी, आती है नहीं आती है? आती है। हाँ, वो कैसे आती है? उस खाने की जो स्मेल होती है उसके जो वेपर्स होते हैं वो वेपर्स एयर के साथ में मिक्स होते हैं और एयर के साथ में मिक्स होके वो कहाँ तक आते हैं, आपके नाक तक आते हैं, जो कि आप स्मेल करके बता सकते हो कि किस यानी कि कौन सी सब्जी पक रही है या क्या चल रहा है किचन में। ये आप बता सकते हो नहीं बता सकते हो? यस, यस। बता सकते हो ना? मीन्स इन दिस हाँ। केस हियर व्हाई इट इज पॉसिबल, बिकॉज the gas particles are to be get spread by their own, and this property of spreading the gas particle by their own, it is known as a diffusion. Have you followed this one? समझ में आया अब यस। डिफ्यूजन क्या है? सबको समझ में आया? देखो अगर हम आरती करते हैं, आरती करते वक्त इसे स्टिक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं ना भगवान के सामने, हम्म तो पूरे घर में उसकी सुगंध फैल जाती है, राइट? अगर यस। आप शूज पहनते हो और किसी ने बहुत दिनों तक अपनी सॉक्स, खुद के सॉक्स नहीं धोए और उसने घर में आने के बाद में क्या किया, शूज निकाल दिया, तो वो सॉक्स की गंदी बदबू सारे घर में फैल जाती है नहीं जाती है? फैलती है। हाँ, राइट, यानी कि अच्छी सुगंध और गंदी बदबू दोनों भी अपने आप फैल जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। व्हाई इट इज सो, एंड दैट प्रॉपर्टी इट इज नोन एज ए डिफ्यूजन। समझ में आया? और ये किस में ज्यादा होती है? गैसियस पार्टिकल्स में, क्योंकि हवा हमेशा हर तरफ फैली हुई होती है। हैव गॉट दिस वन? समझ में आया क्या? यस मैम। मैम, हाँ बोलो बेटा। इरिटेशन यानी? हाँ, इरिटेशन यानी? इरिटेशन यानी कि जो हम बेर नहीं कर सकते उसे हम इरिटेशन बोलते हैं। क्या इरिटेशन हो रहा है यहाँ पे? मैंने इरिटेशन वर्ड यूज ही नहीं किया बेटा। नहीं। इरिटेशन वर्ड मैंने यूज किया? ऐसे ही पूछा आपने, इरिटेशन यानी कि क्या? नहीं मैम, बुक में लिखा है इसलिए पूछा। हाँ, इरिटेटिंग स्मेल यानी कि जो स्मेल हम बेर नहीं कर सकते उसे बोलते हैं इरिटेटिंग स्मेल। समझ में आया क्या? यस मैम। हाँ, right. Now these are the properties of the gaseous state of matter. Okay, okay children, now I'm going to end this meeting because here we have to I have to conduct the one more class. Have you got what uh, I taught today? सबको समझ में आया? कल भी हम इसी वक्त यानी कि 3 o'clock ही मिलेंगे। ओके, Yes, we'll ma'am. conduct class at 3 o'clock. Okay. Okay, Now okay, I ma'am. have to end the meeting, beta. Bye. Ma'am, 3 o'clock. हाँ, 3 o'clock. Tomorrow also. हाँ, tomorrow also 3 o'clock. Okay. Okay, ma'am. And the fourth Yes. means that fourth class will be off. Which fourth class? No, at third class there is off. No. I don't know, beta. I'm going to conduct the class tomorrow at 3 o'clock. Okay. Bye. Okay, ma'am. Bye. Bye.